अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो ली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा तोलना आसमान बाकी है। जय हिंद दोस्तों, लर्न टुडे फॉर अ बेटर टुमारो ओनली ऑन लर्निंगर। जिवें कि लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਪੀਸੀਐਸ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੈਟ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ PSSB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਕਾਨੂੰਗੋ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਪੋਸਟ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ 15 ਤੋਂ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਔਰ ਆਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਓ, ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ UPSC ਦਾ ਸੀਸੈਟ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ, ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਟਾਈਪ ਨੈਕਸਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਔਰ ਪੈਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਜਾਂ 3 ਵੀਡੀਓਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇ ਬੇਸਿਕਸ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕਸ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਲੈਵਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ PDF ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, when income of a man increase by rupees 6,000, then tax rate reduced from 18% to 15%। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਨੂੰ 2 ਵੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਵੇ ਹੋਏਗਾ। while in both the situations 25% income is tax free. Find the initial income if he paid equal tax in both cases.
इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस। पहला की करना तुसीं जब भी कोई क्वेश्चन करना है वीडियो में पॉज करना है और 1-2 मिनट लगाने आ। जो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो वैरी वेल डन, अगर नहीं हो रहा तो फिर मैं तुहानूं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। वैन इनकम ऑफ मैन इज इनक्रीज्ड बाय 6000। पहला एक परसन की इनकम आती सी, कुछ आती सी, पता नहीं किन्ने रुपए सीगे, सानूं कुछ नहीं पता जी किन्ने रुपए सीगे। ਉਹਦੀ इनकम ਦੇ की हो गया, वाधा हो गया। किन्ने रुपए का जी? 6000 का। ਇਹਦਾ मतलब ओरिजिनल इनकम कितनी सीगी? X रुपए। न्यू इनकम कितनी होगी जी? तुसीं Y मानी तो Y मान सकते जे। जे नवी इनकम जो इनक्रीज हुई है तो X प्लस 6000 की होगी साडी नवी इनकम होगी। दैन टैक्स रेट रिड्यूस फ्रॉम 18% टू 15%। पहला जो टैक्स लगता सीगा गवर्नमेंट ने की करा 18% टैक्स वसूलती सीगी इनकम के उपर, हुण कितना वसूल रही है जी? 15%। टैक्स रेट की होगी? रिड्यूस होगी, घट गई। वाइल इन बोथ द सिचुएशन 25% इनकम इज टैक्स फ्री। जी साड़ी 25% इनकम है, जी मैंने जॉब तो कोई भी सैलरी आती है जो कोई भी इनकम हो रही है, तो गवर्नमेंट ने की करा उनका 25% इनकम का चौथा पार्ट 100% के 25% की जी फोर्थ पार्ट इनकम का की करता जी टैक्स फ्री। इसका मीनिंग जो 25% के उपर टैक्स नहीं लगना तो इनकम के 100% के 25% कट दिए तो बाकी कितना पार्ट बचा जी? 75%। इसका मीनिंग इनकम कि टैक्स कि उपर लगना है? वो साड़ी इनकम के 75% हिस्से के उपर। फाइंड द इनिशियल इनकम, वो शुरुआत वाली इनकम पता करो। इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस, जेकर वो दोनों सिचुएशन के जिन्ना टैक्स पहला दे रहा है उन्ना ही टैक्स बाद भी दे रहा है। तो आप क्वेश्चन देखो करते हैं। मैं ओरिजिनल इनकम मान लीजिए, इनिशियल इनकम कितनी है जी? इनिशियल इनकम एक्स रुपए मान ली। होने वाली जी इनकम है करंट इनकम, वो कितनी है जी? या इनक्रीज्ड इनकम ही कह सकते तुसीं। कई क्वेश्चन जाएगा फाइंड हिज इनक्रीज्ड इनकम कितनी जी? X प्लस 6000। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਨਣਾ ਹੈ Y ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਨਕਮ X ਰੁਪਈਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਨਵੀਂ ਜੀ? X प्लस 6000। टैक्स किन्ने परसेंट फ्री है जी? 25%। ਇਹਦਾ मीनिंग 25% इनकम के उपर टैक्स नहीं लगना। किन्नी इनकम उपर लगेगा? 75% उपर। किन्नी उपर लगेगा जी? 75% इनकम के उपर टैक्स लगेगा। इनकम के 25% हिस्से उपर टैक्स नहीं लगना दोनों केसेस के 75% के उपर लगेगा जी। पहला टैक्स कितना लगता सीगा जी? 18%। हुण कितना लगता टैक्स जी? 15%। टैक्स रेट की घटाती, किन्ने परसेंट घटाती जी? 3% घटाती। कितना लगता जी? 15%। बाद आप क्वेश्चन देखना तुसीं ओरली कर लोगे क्वेश्चन। ओरली मतलब कि आप विदाउट पैन फ्री हैबिट बनानी है क्वेश्चन करने की, तो मैं तुहानूं हौली सिखावांगा कि मैं क्वेश्चन टैकल करना है। स्टेटमेंट पढ़ी और डायरैक्ट आंसर देना है। थोड़ा सोल्व करते हैं जी। तुसीं ये देखो जो इनिशियली दोनों की जगह की है जी, इत्थे जिन्ना टैक्स लग रहा है, जिन्ना टैक्स इत्थे मिल रहा है किहदे च? रुपीज़ दे विच। जिन्ना टैक्स इत्थे मिल रहा है रुपीज़ दे विच, उन्ना ही टैक्स की हो रहा है इत्थे मिल रहा है, क्योंकि ये गिवन है इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस। जिन्ना टैक्स इत्थे पे कर रहा है उन्ना ही दूसरी कंडीशन दे विच पे कर रहा है। पहला इनकम कितनी सीगी जी? X रुपए। 25% टैक्स फ्री है, मतलब कितनी इनकम के उपर लगेगा? 75% उपर। कितना टैक्स लगता जी? 18%। नवी इनकम X प्लस 6000, कितना टैक्स लगता जी? 75% उपर। टैक्स कितना लगता जी? 75% उपर। कितना लगता जी? 15%। 15%। तो ये देखो X इंटू 75% इंटू 18%, X प्लस 6000 75% इंटू 15%। नोट कर देना नाल नाल। X रुपए 25% टैक्स फ्री, 75% उपर टैक्स लगेगा और टैक्स रेट कितनी है जी? 18%।
देखो 75% ਨਾਲ 75% कैंसल हो गया, परसेंटेज का साइन सीगा कैंसल हो गया जी, 3 ਦੇ टेबल से कैंसल करो, 3 6 18, 3 5 15, ਹੁਣ मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया जी 6x आ गया, आ कितना आ गया 5x, आ कितना बन गया जी 30,000। x की वैल्यू पता करनी सीगी, ओरिजिनल इनकम पता करनी सीगी, इनिशियल इनकम, तो कितनी आ गई जी 6x के विचों 5x माइनस कराएंगे तो इनकम कितनी आ गई जी 30,000 रुपए। ये जी साडा पहला वे, फर्स्ट वे सीगा करन दा। दूसरा वे देखते हैं आपां किवें करना है जी, नोट कर लेना नाल नाल, और कोई भी चीज़ मिस नहीं करना, जो भी चीज़ मैं तो लैंग्वेज बोल रहा। तुसीं ये देखो पहला इनकम सीगी x रुपए, इनिशियल इनकम कितनी सीगी जी x रुपए, फाइनल इनकम कितनी होगी जी, फाइनल इनकम कितनी होगी y रुपए, इनिशियल इनकम x रुपए, फाइनल इनकम होगी y रुपए। किन्ने के उपर टैक्स लगता जी 25% उपर नहीं लगता, दोनों केसेस दे विच 25% उपर टैक्स नहीं लग रहा, किन्ने पर लगेगा जी 75% उपर। और टैक्स रेट कितनी है जी, टैक्स रेट है 18%, और दोनों के विच इत्थे कितना लग रहा जी 75% उपर, इत्थे टैक्स रेट कितनी जी 15%। आ जी साडी करंट इनकम, फाइनल इनकम, आ जी इनिशियल इनकम, कटोगे दोनों जगह ते टैक्स की है जी रुपीज़ दे विच की है, इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस, ठीक है जी, x इंटू 18%, y इंटू 15%, परसेंटेज साइन कटांगे कैंसल जी, 3 6 18, 3 5 15, 6x इंटू 5y, 6x इंटू 5y, आ स्टैप में इधर सोल्व करते हैं जी, 6x इंटू 5y, आ सी इनिशियल इनकम, y बटे च लाओ, 6 बटे जाएगा कितना आ जाएगा, आ सी पहला साडी 5 यूनिट इनकम, हुण कितनी है जी 6 यूनिट। इनकम च वाधा कितना किया मैं 1 यूनिट का, कितना वाधा किया जी 1 यूनिट का, इत्थे कितना वाधा होया 6,000 रुपये का, जे 1 यूनिट च वाधा किया आपां, इत्थे आपां 1 यूनिट वाधा किया, इत्थे कितना करे जी रीयल दे विच 6,000 रुपये। आपां कढनी कितनी है जी ओरिजिनल इनकम, ओरिजिनल इनकम कितनी है जी 5 यूनिट, 5 यूनिट मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आ जाएगा जी 30,000 रुपये। आ सीगा साडा दूसरा वे, तुसीं नोट कर लो, नाल नाल नोट करते जाना है, और कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। हुण देखो जे करनी हुंदी फाइनल इनकम तो 6 यूनिट मल्टीप्लाई कर देना सीगा तो कितना आना सीगा 36,000। नोट करते रहना नाल नाल, कापी और पेन लैके, और देखो ओरली सोल्व करना है। तुसीं ये देखो इनकम दे विचों 25% के उपर नहीं लगना जी टैक्स, 25% के उपर नहीं लगना, इसका मीनिंग 75% उपर लगना है, दोनों साइड 75% की आ जाएगा, कैंसल हो जाएगा। हुण तुसीं ये देखो पहला लग रहा सीगा 18%, हुण कितना लग रहा है 15%, पहले लग रहा सीगा 18%, हुण कितना लग रहा जी 15%, डिफरेंस कितना है जी, कितना है जी, क्योंकि जो बराबर रखेंगे परसेंटेज ना परसेंटेज साइन कटा जाएगा, x इंटू 18 इक्वल टू 15 इंटू वाई, कितना आ जाएगा 15/18, किन्ने यूनिट का वाधा है 15/18, 3 यूनिट का, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है जी 6,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी 2,000। जे आप कढ़नी रियल इनकम 15 ਨੂੰ 2,000 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30,000, 18 ਨੂੰ 2,000 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा जी 36,000। ये सीगा डायरैक्ट करना है आपां जो पेन भी यूज नहीं करना, ऑरली सॉल्व करना है। तो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी हाई टाइप का, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है टैक्स वाले क्वेश्चनों के। द इनकम मैन इज 28,800, the income of man is 28,500, the income of man is rupees 28,800. Now his income is increased
Now his income is increased. Income is increased. Now his income is increased. Now his income is increased. स्टेटमेंट में जरूर ध्यान पढ़ना है, स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी तो फिर क्वेश्चन भी नहीं होने. Income is increased. Now his income is increased and tax rate reduce from 12% to 10%, 12% to 10%. While in the both situation 30% income is tax free. 30% income is tax free. Find the increase in his initial income. Find the increase in income. Find the increase in initial income if he paid equal tax in both cases. तो की करना है जी, हुण क्वेश्चन थोड़ा जिहा घुमाता. इनिशियल इनकम दी हुई है कितनी है जी, तुसीं देखो इनिशियल इनकम मैन इज द मतलब प्रेजेंट दे विच कितनी है 28,800. नाउ इज इनकम इज इनक्रीज, फ्यूचर दे विच मतलब कुछ इनक्रीज हो गई और टैक्स रेट की हो गया रिड्यूस हो गया 12% टू कितना हो गया जी 10%. पहला टैक्स रेट कितना सीगा 12%, हुण कितना जी परसेंटेज दे देखो अलग अलग है, पर उन्होंने गिवन दिता है इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस. रुपए दे विच कि जे इत्थे 5,000 टैक्स पे कर रहा है तो इत्थे भी कितना पे करेगा जी 5,000 ही करेगा. वाइल इन द बोथ सिचुएशन 30% की है जी टैक्स फ्री. जी इनकम है 30% के उपर टैक्स नहीं लगना, पहली इनकम के उपर किन्नी जी बच गई किन्नी जी 70% उपर टैक्स लगेगा. दोनों किसी के 70% उपर टैक्स लगेगा, यदा मीनिंग 70 में 70% कैंसल हो जाएगा. तुसीं देखो पहला इनकम सी 28,800, कितना टैक्स सीगा जी 12% टैक्स लगना सीगा, किन्नी इनकम उपर 70% उपर. ये सी इनिशियल इनकम की गल कर रहे हैं. फाइनल इनकम के कुछ वाधा होया, कितना वाधा हो गया जी 28,800 दे विच एक्स रुपए करता जी वाधा करता. कितना वाधा करता जी 28,800 दे विच एक्स रुपए वाधा करता. हुण भी 70% इनकम के उपर टैक्स लगना है, और लगना कितना जी 10%. 70% में 70% की हो जाएगा जी कैंसल. 28,800 लिखा रहने दो इस तरह. अब 12% है 28,800 प्लस एक्स कितना जी 10%. परसेंटेज ना परसेंटेज साइन कट दो. 28,800 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो. 28,800 इंटू 12, 28,800 इंटू 10 इंटू एक्स इंटू 10. हम देखो 28,800 इंटू 12 है 28,000 इंटू 10. तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का. जो इधर लियावांगे रकम नूं या टर्म नूं 12 माइनस कितना हो जाएगा 28,800 कॉमन निकल जाएगा, कितना रह जाएगा जी सही है जी 0 0 कैंसिल होगी. 28,800 आ कितना है जी 2. 28,800 नहीं हम कितना जी 2880. 0 0 कैंसिल हो गई है, नाल कितना आ गया जी 2. कितना बनेगा जी 2800 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 5600. 80 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 160. 5600 ਤੇ 160 कितना हो गया जी एक्स की वैल्यू आ गई 5760 रुपए. आज तो साडा आंसर सीगा इनक्रीज्ड इनकम. नोट करते जाना है, टाइम नहीं वेस्ट करना, आपां तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने. इन्हें तुसीं ओरली सॉल्व कर सकते जी जे करना होंदा तां. तुसीं देखो इनकम कितनी है 28,800, वाधा करया पता नहीं कितना वाधा करया, मैं एक्स रुपए वाधा करता जी 28,800 प्लस एक्स आ गया नवी इनकम. पहला टैक्स लगता सीगा 12%, हुण कितना लगता जी 10%. 28,800 पर 12%, अगले 28,800 पर 10%, 2% का की आ गया डिफरेंस. हुण परसेंटेज ने परसेंटेज का साइन कट्टिया गया बाहर. 28,800 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कराया सीगा तो कितना बनेगा जी 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करता, नाल कितना बना सीगा एक्स के नाल 10x.
0 0 कैंसल हो जानी सी 2880 जो 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ 5760। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਔਰਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੈਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 2 ਦਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਾਈਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 10 ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨਕਮ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਕੁਅਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਡੀਪ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਡ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਟਿਪੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ the amount of work is in a factory the amount of work in a factory is increased by 50%। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ 100 ਪਾਈਪਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 100 ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 50% ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ 100 ਦਾ 50% ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਦਾ 50% ਹੋ ਗਿਆ 50, ਮਤਲਬ 50 ਪਾਈਪਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਪਾਈਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ 50 ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 150 ਪਾਈਪਾਂ। ਬਾਈ ਵਟ ਪਰਸੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਈ ਵਟ ਪਰਸੈਂਟ is it necessary to increase the number of workers to complete the work in previous time if the productivity of new labor is 25% more than previous labor। देखो स्टेटमेंट समझ आएगी तो क्वेश्चन होएगा। अर्थमैटिक ऑल अबाउट की है जी, तुहानू स्टेटमेंट समझ आ रही है, जे नहीं आ रही तो तुम क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाओगे, मतलब सोल्व नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करनी है स्टेटमेंट समझने की। कहते द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री इज इनक्रीज बाय 50%। ਜਿਹੜੇ फैक्ट्री ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ 50%। ਮੈਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਖੰਭੇ ਜਾਂ 100 ਪੋਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, 100 ਪਾਈਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 100 ਪਾਈਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀ ਜਾਂ 100 ਚੋਕਲੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 100, ਇਹਨਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ x ਮੰਨਣਾ ਹੈ, y ਮੰਨਣਾ ਹੈ, z ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਟਰਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਚੋਕਲੇਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 50% ਚੋਕਲੇਟ 50% ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਤਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਚੋਕਲੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਚੋਕਲੇਟ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 50 ਚੋਕਲੇਟ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਤਾ, 50% ਮਤਲਬ 150 ਨਵੇਂ ਚੋਕਲੇਟ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਜੀ 150। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਏ ਵਟ ਪਰਸੈਂਟ
किन्ने प्रतिशत इट इज नैसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर, किन्ने प्रतिशत वर्कर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ, किन्ने प्रतिशत और लेबर ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟਾਈਮ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। मतलब ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਗੈਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ 100 ਚੋਕਲੇਟ, ਹੁਣ 150 ਚੋਕਲੇਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊ ਲੇਬਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਰਕਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਲੇਬਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 25% ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੇਬਰ, 25% ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੇਬਰ। ਜਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ 25%। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, मैं टोटल वर्क कितना मान लिया जी, टोटल वर्क मान लिया पहला वाला 100 यूनिट, 100 यूनिट या 100 चॉकलेट। पहला कोई लेबर काम करती होएगी, ऑफ कोर्स करती होएगी जी। पहला कोई लेबर काम करती सी, पर काम टोटल कितना करते थे 100। मैं कह जी एक वर्कर जे 10 चॉकलेट बना है, एक वर्कर जे 10 चॉकलेट बना है तो 10 वर्कर कितने बना देंगे जी 100 चॉकलेट बना देंगे। कितने बना देंगे जी 100। हुण तुसीं ये देखो, जिहड़ी हुण नवीं लेबर आएगी, पहला 10 वर्कर ही, पहला वाले 10 वर्कर ही 100 काम नूं पूरा कर देंदे सीगे। मतलब कि आपां नूं फालतू लेबर लिआउण दी लोड़ नहीं, जो आप 100 काम कराने तो आप 10 वर्कर नाल ही काम चला सकते हैं। हुण जिहड़ा फालतू काम आया है वो फालतू काम किहने करना है, नवीं लेबर नहीं करना है, क्योंकि आप पहले जो 100 करवाने तो आप नवे लिआउण दी लोड़ ही नहीं। जे आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं जिन्ना आप उन्नी लेबर नाल ही सार सकते सीगे, 10 लेबर नाल या 10 वर्कर नाल ही कितना काम करवा सकते सीगे टोटल 100 यूनिट। एक करदा सीगा 10 यूनिट, वर्कर किन्ने जी 10 वर्कर, टोटल काम कितना हो गया 100 यूनिट। हुण काम दे विच वाधा हो गया, कितना हो गया जी 50% वाधा, 100 का 50% वाधा हो गया, मतलब काम कितना वध गया जी 50 यूनिट वध गया। हुण जिहड़ा 50 यूनिट काम होना है वो किने करना है, आ 10 लेबर ने करना है कि नवी लेबर ने करना है, आ 10 लेबर ने नहीं करना। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता जी 100 काम करवाने का 10 वर्कर नाल ही काम चल जाना सीगा। नवा जिहड़ा काम करना नवी लेबर करेगी, और जी नवी लेबर है, जे एक लेबर 10 यूनिट काम करती है, जे एक लेबर 10 यूनिट काम करती है तो नवी लेबर कितना करती है जी वो तो 25% ज़्यादा, कितनी करती है जी 25% ज़्यादा। डाटा पॉइंट्स दे विच आ रहा है, आप कोई डाटा इनू होर भी ईजी मान सकते हैं, पर देखने करके कितना बन जाएगा जी 12.5, कितना जी 12.5। हुण जिहड़ा एक वर्कर करता है वो करता है 12.5, ਇਹਦਾ मीनिंग जी एक वर्कर 12.5 काम करता है तो आप कितना फालतू काम करवाना है, कितना फालतू काम करवाना है जी 50 यूनिट। एक वर्कर 12.5 करता है, तुसीं ये देखो नवे होर वर्कर किन्ने चाहिए ने आपां नूं 50 नूं 12.5 ते भाग करांगे, किन्ने वर्कर नवे आ जाएंगे, किन्ना आ जाएंगे जी 4 न्यू 12 चों 48.5 नूं करांगे, किन्ना आ जाएगा जी न्यू 4 वर्कर आ जाएंगे। और जी तुसीं देखो पहला नवे किन्ने वर्कर सीगे, पहला किन्ने वर्कर सीगे 10, हुण किन्ने हो गए जी 4 वध गए, वध गए 100 पिछे किन्ने वध गए जी, तुसीं देखो 40%। एक क्वेश्चन नोट कर लो, मैं तुहानूं होर भी एक डॉटे नाल समझाना
कि सौखा डाटा तुहानूं समझ लग जाए। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ यूज़ करांगे ये वाला डाटा सारा। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ नोट कर लो। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होएगी लैंगुएज ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ नोट कर लो। ਤੁਸੀਂ टोटल वर्क जिन्ना मर्जी मान लो, जिन्ना मर्जी मानना, मैं 100 ही मान के चलदा। टोटल वर्क कितना जी? टोटल वर्क है 100 चॉकलेट। पहला करते थे 25% की फ्रैक्शन तोल लो, कितनी जी? 4। पहला एक वर्कर काम करता सीगा 4 चॉकलेट। पहला एक वर्कर बनाता सीगा 4 चॉकलेट, कितना वाधा करता जी? 25% उपर, मतलब 1 यूनिट वाधा करता। पहला एक लेबर जी बनाती सी चॉकलेट किन्ने बनाती सी? 1 परसन या 1 जना किन्ने चॉकलेट बनाता सीगा? 4। और 25 वर्कर किन्ने चॉकलेट तैयार करते सीगे? 100 चॉकलेट, क्योंकि टोटल वर्क कितना करवाना सीगा आपां पहला? 100 चॉकलेट। वाधा कितना करता जी? 50% वाधा करता। ਇਹਦਾ मीनिंग नवा जिहड़ा काम आ गया वो कितना वध गया जी? 50 चॉकलेट का काम वध गया। पहला वाला काम तो कर ही रही सी लेबर, कितनी लेबर कर रही सी? 25 वर्कर कर रहे थे। हुण जिहड़ा पहला सी इनीशियल जिहड़े वर्कर सी, इनीशियल वर्कर वो तो आपका काम कर रहे थे 100 चॉकलेट, और किवें कर रहे थे? किहड़ी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग? क्षमता कितनी सी उन्हां दी? एफिशिएंसी सी 4 चॉकलेट पर वर्कर, 4 चॉकलेट पर वर्कर, तो 25 वर्कर ने काम करता 100 चॉकलेट का। हुण फालतू जो काम करवाना कि तो करवाना है? नवी लेबर तो। और नवी लेबर कितना करती जी? पहले तो 25% ज़्यादा, पहली लेबर 4 चॉकलेट बनाती है एक वर्कर, तो नवी लेबर कितनी बनाती जी? यदा 25% ज़्यादा, मतलब एक ज़्यादा बनाती है, तो किन्ने बनाती है जी? 5 चॉकलेट पर वर्कर। पहले वर्कर 1 चॉकलेट, पहला वर्कर बनाता सीगा 4 चॉकलेट, हुण वाला वर्कर की बनाता 25%, 4 का 25% मतलब चौथा हिस्सा ज़्यादा बनाता है। मतलब पहला 4 बनाते थे, हुण किन्ने बनाते जी? 5 चॉकलेट। एक जना किन्ना बनाता जी? 5 चॉकलेट पर वर्कर। और आप फालतू बनाने भी किन्ने चॉकलेट? 50 चॉकलेट। किन्ने बनाने जी? 50 चॉकलेट। जे फालतू 50 चॉकलेट बनाने तो नवे वर्कर किन्ने चाहिए ने जी? एक जना 5 बनाता है तो 50 चॉकलेट बनाने तो किन्ने वर्कर चाहिए? होर न्यू वर्कर किन्ने चाहिए जी? 10 न्यू वर्कर चाहिए 10। ये मैंने पहला वर्कर किन्ने से 25, किन्ने का वाधा हो गया? 10 का। और परसेंटेज देखना है, परसेंटेज इनक्रीज कितना है जी? 100 पिछे कितना वाधा हो गया जी? तुसीं देखो 40%। तुसीं जो मर्जी डाटा लैके कर सकते जो तुहाडा मन करता है, पर समझ के करना क्वेश्चन को। कुछ भी इहदे जो भी बरीक पॉइंट है कुछ भी नहीं छड्डना। हुण क्वेश्चन थोड़ा जिहा ईजी हो गया सीगा, आ सीगा क्वेश्चन। हुण आपां अगे नैक्सट क्वेश्चन करदे जी। टाइम नहीं वेस्ट करना आपां ज़्यादा गल्लां दे विच, टू द पॉइंट गल करांगे। नैक्सट क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी। मैं क्वेश्चन कोई भी नहीं छुड़वाना। 150 जो क्वेश्चन है तो पूरा 150 होएगा PDF का। आ लेबर वर्क्स। तुसीं अपने कमेंट्स के जरूर दस्सिया करो तुहानूं ये साडा जिहड़ा सैशन किवें लग्गिया मैथमैटिक्स का। तुहानूं जे वधिया लग रहा तुसीं कमेंट्स के दस्सिया करो, अपने रिस्पोंस दिता करो कि सर सानूं कंटेंट या कोई डाउट आउंदा ना, तुसीं कमेंट के डाउट पा दिया करो, असीं सॉल्व कर दिया करांगे। मैनूं लगदा तुसीं प्रैक्टिस नहीं करदे, घर प्रैक्टिस करो। कुछ बच्चों का रिव्यू आए थे कि सर किहड़ी बुक लईए, तुहानूं जो भी अच्छी बुक लगती है, कोई भी तुहानूं मतलब कोई भी पब्लिशर है, क्योंकि सारिया बुक्स अच्छी ने, चाहे राकेश यादव की ले लो, अभिनय शर्मा की ले लो। अभिनय शर्मा शायद एडवांस मैथ की आउंदी है। किरण की ले लो बुक, किरण के प्रीवियस, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही आप प्रैक्टिस करनी वध तो वध। और जिन्हें भी मतलब अपने पढ़ा रहे जिन्हें भी सारे कमांड के जिन्हें भी टीचर आ, अच्छे अच्छे बेहतरीन टीचर आ, तो सारिਆਂ ਦੀ मगर बुक्स अच्छिया ने। बस तुसीं की उन्होंने की कराया, कोई पुरानी बुक्स उपर उन्होंने अपनी बुक के कंपाइल करके पाते, जिथे तुहानूं अच्छी कंपाइलेशन मिल रही है। मतलब ज़्यादा ना होने 15-20 हज़ार क्वेश्चन, तुसीं अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन कोई 2-3 हज़ार क्वेश्चन ले लो और उन्होंने प्रैक्टिस करी जाओ बार बार। जो ज़्यादा डाटे नाल ना
ਉਹੀ क्वेश्चन वार-वार प्रैक्टिस कीते जाण तां साडा कंसैप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है, तो फिर कोई क्वेश्चन अपना पेपर दे विच रहिंदा नहीं। A labor works 60 hours per week and he earns rupees 2400 as wages। देखो आ वाला क्वेश्चन तुसीं अपने आप करना है, मैं करवाया पॉपुलेशन वाला है। इफ his per hour wages is increased by 40%। हाँ सैशन जो होगा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सैशन वध तो वध शेयर करना है, क्योंकि कोई भी अपना पंजाब का जो चैनल है ना, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैंने पता है, पर उस पूरा कंटेंट नहीं दे रहे तुहानू, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, तुसीं तुहानू कंटेंट अच्छा मिल रहा, तुसीं देखो, तुसीं एक बारी ट्राई करके देखो, जो वधिया नहीं लगता तो छड्ड दो, आई है, जे वधिया नहीं लगता तो कोई गल नहीं, छड्ड दो, जे अच्छा लग रहा तो फिर शेयर जरूर करो, कि पंजाब के हरेक कोने दे विच माझा मालवा दुआबा तो सारे ही आपां घेर लेना है लर्निंग करव टीम ने, कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ बेनीफिट मिल सके। जिन्ने भी मेरे फ्रेंड्स आ, जिन्ने भी मेरे दोस्त आ, जिन्ने भी साथी सानू फॉलो कर रहे हैं, वो जरूर ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करन, सबसक्राइब करन, और जिन्ना भी कंटेंट करवा रहे हैं वो पेपर या एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई फालतू नहीं हैगा, और बहुत सटीक मैथड ने, और बहुत बेसिक्स तो लैके चल रहे हैं। मैं तुहानू कहा बेसिक्स भी करावांगा और ट्रिक्स भी करावांगा, बेसिक्स नाल ही साडा सारा पेपर कंप्लीट हो जाता है, वो भी साडा टाइम तो पहला कंप्लीट हो जाता है। वो आपां पेपर लावांगे, पेपर के सैट्स कोई 15 जो पेपर कोई आएगा, जो भी पेपर कोई आएगा आपको तुहानू दसांगा किवें स्ट्रैटजी फॉलो करनी है, पेपर नूं किवें सॉल्व करना है, तो आपां देखांगे, पर होएगा प्रैक्टिस नाल। जो तुसीं 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, फ्रैक्शन याद कर लोगे, परसेंटेज वैल्यू याद कर लोगे, बड़ा ईजी हो जाएगा, तुहानू भी ईजी हो जाएगा, और कोई भी बुक फॉलो करोगे उन्हां दे विच तुहानू भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जो इस मैथड नाल करोगे। बुक वाला मैथड नहीं करना, बुक दे विच XYZ नाल करिया हुंदा है, आपां मनना ही नहीं XYZ, कोई एक दा क्वेश्चन हुंदा है जिहदे ते बेसिक्स पूरा ट्रेडिशनल मैथड चलदा है, जिहदे उपर नहीं लाया जांदा, पर वो भी आपां कह लो विद ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, इंक्रीज्ड by 40% and duration of work is reduced by 16 से 2/3%। find the percentage change in his income। मैं तुहानू दस्सिया सीगा जो भी परसेंटेज दे विच आपां कंपैरिजन कर रहे हैं, जब बाद विच रेशियो च कंपैरिजन कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज फॉर्म हो गई, और वो वैल्यूज गिवन ने, तो सानू रीयल डाटा लैन की लोड़ नहीं होंदी। जिवें पिछे सीगा 1,99,000 टोटल पॉपूलेशन सीगी, और 4/9 वाला कराया सीगा आपां 9 यूनिट नूं टोटल पॉपूलेशन मान लिया सीगा। मैं पहला ट्रेडिशनल नहीं करवाउंदा, पहला वधिया मैथड जिहड़ा करवाउणे, मैं कहना अपना मैथड तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ मैथड है जिहड़ा आपां पेपर दे विच फॉलो करना है। अ लेबर वर्क्स 60 आवर पर वीक, एक हफ्ते दे विच कितना घंटे काम करदी लेबर? 60 घंटे, एंड ही अर्नस 2400 एज ए वेजिस, और उन्होंने पगार कितनी मिल रही है जी, कमाई कितनी हो रही है उन्होंने? 2400 रुपए। इफ हीज पर आवर वेजिस इज इनक्रीज बाय 40%, जेकर उनकी घंटे की वेजिस कितनी इनक्रीज करती जी? 40%। तुसीं देखो 60 घंटे एक हफ्ते काम करते हैं, हुण 1 घंटे की करनी तो 1 घंटे की कितनी आ जाएगी? टोटल 2400 कमा रहे हैं 60 घंटे में, 1 घंटे की कितनी आ जाएगी? 60 नाल भाग कर दो, कितना आ जाएगा जी? 0 0 कैंसिल होगी, 40 रुपए आ गई। वो कितनी इनक्रीज कर दी? 40 का 40%। जो 40 का 40% निकाल के देखो कितना बनेगा जी? 16 रुपए। 16 रुपए पहला कितनी सी? 40 घंटे की, हुण कितनी होगी? 56 रुपए। टाइम की करता? रिड्यूस करता। पहला कितना लगता सी टाइम जी? 60 घंटे, हुण कितना रिड्यूस करता जी? 16 से 2/3%, 1/6 रिड्यूस करता। 60 का 1/6 मतलब कितने घंटे? 10 घंटे रिड्यूस करते, हुण कितना लगता जी? 50। 56 ਨੂੰ 50 ਨਾਲ गुणा करांगे, कितना आ जाएगा जी? 250 पी 250 रुपया। हुण वाली वेजिस 250 रुपये आ गई, पहला वाली कितनी सी? 2400। कितना वाधा हो गया जी? 400, 1/6 तो कितना आ गया जी?
16 से 2/3%। आप देखते हैं जी, देखो ओरली सॉल्व हो गया, पर आप मैं तेन कहा डाटे ने यूज नहीं करना। जो सानू गिवन दिता है वही 40% दिता है, वेजिस इनक्रीज की है, वही दिता है, टाइम कितना रिड्यूस करता जी। तुम ये देखो क्वेश्चन आप करते हैं वेजिस ओरिजिनल इंक्रीज्ड वेजिस, %40 वाधा करे जी, वाधा करे तो प्लस का निशान ला दे करो। पहली वेजिस कितनी सी 5 यूनिट, कितना वाधा करता जी 40%, मतलब 5 उपर कितना वाधा होगा जी 2 का, 5 2 वध के कितनी होगी जी 7 यूनिट। हुण कितनी कमाई हो रही जी 7 यूनिट। टाइम टाइम देखिए तो जो भी इनक्रीज या चेंज कह लो, टाइम चेंज है, पहले टाइम कितना सीगा 16 से 2/3% की करता जी रिड्यूस करता, रिड्यूस मतलब घटाता। पहला टाइम लगता सीगा 6 घंटे, कितना घटाता जी 1 यूनिट। 6 यूनिट मनना है तो 6 मान लो। पहला कमाई होंगी सी ₹5 पर का आवर, तुम यहाँ लिख लो, पहला कमाई होंगी सी ₹5 पर आवर, हुण कमाई होंगी ₹7 पर आवर। पहले लगते थे 6 आवर टोटल टाइम, हुण घट गया कितना हो गया जी 1 घटिया, हुण लगते जी 5 आवर। पहला कमाई होंगी सी टोटल ₹30, 1 घंटे ₹5 कमाओ तो 6 घंटे टोटल कितने कमा लो जी ₹30। पहला 1 घंटे के कितने कमाते थे ₹7, तो कितने घंटे लगते टोटल काम, कितनी कमाई होनी सी ₹35। कितना वाधा हो गया जी ₹5 का। उन्हें क्या है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम, ₹5 का वाधा होया, किन्ने उपर वाधा होया जी ₹30 उपर। 100 पिछे कितना वाधा हो गया जी 1/6, 1/6 की वैल्यू है 16 से 2/3%, प्लस का साइन इनक्रीज वाधा है, इनक्रीज आ जाएगा। आ सीगा कितना, तुम देखो मैं डाटा यूज करा 2400 जो ₹60 नहीं कराया, हूँ मैं तुम्हें ट्रेडिशनल मैथड नाल करवा सकना जो बुक्स किया होगा। 60 घंटे काम करते हैं जी और पे कमाते आ ₹2400। 1 घंटे का काम कितना आ गया जी, कट्टांगे कितना आएगा जी ₹40। पहला सी ₹40 पर आवर, कितना इनक्रीज करता ₹40 का 40%, तो ये देखो कितना आ गया जी ₹16 वध गए। 40% इनक्रीज किया है, जो ₹16 इनक्रीज हो गया तो कितना हो गया इनकम हम ₹56 पर आवर। पहला घंटे लगते थे 60 घंटे, पहला काम होंदा सीगा 60 घंटे, हुण 60 घंटिया का 16 से 2/3% घटाता है, मतलब 60 गुणा 1/6 कितना घटाता जी 10 घंटे। पहले 60 घंटे लगते थे, हुण कितने लगते जी 50 घंटे। कमाई कितनी सी पहला 60 घंटे कमाओ ₹40 के हिसाब नाल 1 घंटे के, तो कितने रुपये बन गए जी ₹2400। कितने हो गए जी 56 50 गुणा करेंगे ₹2800। कमाई से कितना वाधा हो गया ₹400। कितना पर वाधा होया जी 2400 उपर, 100 पिछे हो गया जी, देख लो आ कितना कट गया 1/6। 1/6 की कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होंगी जी परसेंटेज वैल्यू 16 से 2/3%। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होंगी जी 16 से 2/3%। आ सीगा ट्रेडिशनल मैथड जो तुसी बुक्स के देखोगे, नोट कर दे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, काफ़ी अच्छा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना बहुत इंपोर्टेंट है। मैं तुहानूं जिवें करवाया क्या सीगा, अपने क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग 22-23 क्वेश्चन कर चुके हैं, और आप कोई भी क्वेश्चन का PDF का कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहे, मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा, और तुसीं प्रैक्टिस करनी है, कोई भी बुक ले लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है।
a family consumes 25 kg rice and 9 kg wheat। 25 kg राइस यूज करते हैं कंज्यूम और 9 kg वीट गेहूं यूज करते हैं पर मंथ। आ क्वेश्चन पेपर और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफी इंपॉर्टेंट है। पर मंथ 25 kg गेहूं और 25 kg राइस एंड 9 kg गेहूं पर मंथ स्पेंड्स। खर्चा कितना हो जाता जी एक्सपेंडिचर उन्होंने हो जाता है 350। हुण आपां नूं पता नहीं ना 25 kg का रेट की है, 1 kg का राइस का और 1 kg वीट का की रेट है, वो आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं और टोटल खर्चा कितना हो जाता उन्होंने 3500। द प्राइस ऑफ राइस इज, आ देखो, द प्राइस ऑफ राइस इज 20% of the price of wheat। wheat बोलते हैं wheat, गेहूं। if रबी क्रॉप जिन्होंने बोलते हैं, if the price of wheat is increased by 20%, then find the percentage reduction in consumption of rice। स्टेटमेंट देखो कितनी वड्डी है, पर है नहीं क्वेश्चन दे विच कुछ। if it has the same amount, देखो स्टेटमेंट इंग्लिश पर डिक्टेट पंजाबी च कर रहे हैं, दस रहे हैं पंजाबी च कि किसी को लैंगुएज बैरीयर नहीं रहना चाहिए पंजाब के जिन्ने भी एस्पीरेंट्स आ। नहीं तो असी चैनल में कह लो लैंगुएज में हिंदी भी यूज कर सकते थे, मतलब सारे कैंडिडेट इंक्लूड करते चाहे ऑल इंडिया लैवल से है, पर साडा मोटिव या ऑबजैक्टिव की है कि सारे पंजाब के कैंडिडेट को ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁੱਲਿਆ, ਵਿਕਰਾਇਆ ਮੁੱਲਿਆ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਆ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਾਈਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਕੁਝ ਵੀਟ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਸ 25 ਕਿਲੋ ਲਿਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀਟ ਲਿਆਂਦੀ 9 kg ਔਰ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 350। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਈਸ ਦਾ 25% ਕੀ 20% ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਵੀਟ ਦਾ, मतलब जे वीट का प्राइस है 100 रुपए 100 यूनिट, तब राइस का प्राइस की हो जाएगा 20 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि 20% होता। इफ प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज्ड बाय, बाद च वीट का प्राइस की बताता 20%, दैन फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस। तो कहते किन्नी कंजम्पशन दे विच आपां कटौती करिए घटाइए इफ इट हैज द सेम अमाउंट टू स्पेंड, कि असी पिछले वाला खर्चा ही हरेक महीने मतलब जिन्ना खर्चा पिछे हुंदा सीगा 350 पिछले महीने, अगले वाले जो नैक्सट मंथ के भी साडा खर्चा कितना रहे 350। पहला मेरा खर्चा 350 हुंदा सीगा, 25 kg राइस सीगे, 9 kg वीट के उपर, और जो राइस का प्राइस सीगा 20% सीगा वीट के प्राइस के नालों। मैं कि 20% सीगा जे वीट के प्राइस का, तब जे वीट का प्राइस मैं मन्निया 5 यूनिट तो यदा कितना आ जाएगा जी 1 यूनिट। इफ द प्राइस ऑफ वेट जे इनक्रीज करता है 20%, 5 यूनिट तो 20% इनक्रीज करेंगे कितना आ जाएगा 6 यूनिट हो गया जी। पर फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन, सानू राइस की कंजम्पशन के कितनी कटौती करनी पैनी है इफ इट हैज द सेम अमाउंट टू स्पेंड।
जिन्ना ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ अमाउंट एंड द प्राइस ऑफ राइस इज कॉन्स्टेंट एंड द प्राइस ऑफ ਇਹ क्वेश्चन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ एंड द प्राइस ऑफ राइस इज कॉन्स्टेंट ट्राई करना कर तो क्वेश्चन ऑप्शन ही दे देना पहले ऑप्शन है 36%, दूसरी ऑप्शन है जी 25%, तीसरी ऑप्शन है जी 45%, फोर्थ ऑप्शन है जी 20%। ट्राई करना कर तो नोट कर लो, फिर आप अगे नैक्सट वीडियो देखते हैं जिन्ने परसेंटेज क्वेश्चन आ स्टेटमेंट मैंने लगता किसी ने कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले समझा दी ऑलरेडी, तुसी भी 3 ਤੋਂ 4 बार रीड करना कोई भी। और ऑल दी बेस्ट सारिਆਂ ਨੂੰ, स्टे हैल्थी स्टे सेफ। तुसी अपने घर रह के मतलब कि सारा हुण तुहानूं पता ही जिवें लॉकडाउन का सीजन जा कह लो दौर चल रहा है, तो इस आपां इस पीरीयड दे विच एक क्रूशियल पीरीयड दे विच एग्जाम भी शायद जे 2020 ਦੇ अप टू 2020 ਦੇ कंडक्ट नहीं करा रही साडी पंजाब गौरमेंट, क्योंकि किते ना किते कह लो करोना भी हो गया, इत्थे भी असीं लैकिंग कर रहे हैं। जेकर करोना वाला ये पैंडेमिक या ये वाली बीमारी ना होंदी तो शायद इस साल मोस्ट प्रोबेबली सीगी सरकार कोई ना कोई इस तरह की वैकेंसियां लियाउंदी जिवें क्लैरिकल दे विच पटवारी दे विच। पर हुण नैक्सट ईयर की है जी 2020 दे विच तां आईयां नहीं, हुण की आउणगीਆਂ 2021 दे विच आउणगीਆਂ, ठीक है जी 2021 दे विच। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫਰੈਸ਼ਰ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਆ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਨਾਲ GS ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਉਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਥ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰਸ 'ਚ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖੁਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਜਾਈ ਸਕੀਏ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਆਵਰ ਚੈਨਲ।